کیا آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار یا کوئی قریبی دوست جو کہ مر چکا ہے، آپ کو اس کی آواز آئی ہو یا آپ کو ایسا لگا ہو کہ آپ نے اس کو کہیں دیکھا؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہے تو اس آواز کا جواب دینے کے بجائے یا جو آپ کو دکھا اس کے پاس جانے کے بجائے اللہ سے پناہ مانگیں اور جتنا ہو سکے اس آواز اور اس چیز سے دور بھاگ جائیں، کیونکہ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ صرف ایک بات کا جواب دینے سے آپ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ ویسے تو اللہ نے بے تحاشا مخلوقات بنائی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کیسی دکھتی ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کا کھانا پینا کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کا ثبوت یا اس کی دلیل وہ آیت ہے جو سورہ مدثر میں موجود ہے۔ وہ آیت تو اٹسلف بہت لمبی ہے، لیکن اس میں یہ بات ضرور مینشن ہے کہ اللہ اور اس کے لشکروں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ جو مخلوقات اللہ نے ایسی بنائی ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں یا جو ہمارے ساتھ ہی اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں، ہم ان کو تو مانتے ہیں، لیکن جو مخلوقات اللہ نے ایسی بنائی ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ان پہ بھروسہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی دو مخلوقات ایسی ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن دنیا کا ہر ریلیجن، دنیا کا ہر کلچر ان میں یقین ضرور رکھتا ہے۔ ان میں سے پہلی مخلوق ہے فرشتے، جن پہ دنیا کا ہر ریلیجن ہی یقین رکھتا ہے، اور دوسری مخلوق ہے جنات۔ اب جنات ہر ریلیجن میں ایک جیسے نہیں، فرشتوں کے بارے میں تو ہر ریلیجن میں ایک ہی بلیف ہے کہ فرشتہ اللہ کی ایک ایسی سپر نیچرل مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتی ہے اور ان کی اپنی کوئی چوائس نہیں۔ اللہ نے ان کو عقل تو دی ہے، ان کو ڈیسیجنز لینے کی پاور تو دی ہے، لیکن ان کو فری ول نہیں دی جیسے انسانوں اور جنات کو دی ہے۔ لیکن جنات کے بارے میں ہر ریلیجن اور ہر کلچر کی بالکل ہی ڈیفرنٹ اپروچ ہے۔ یہ تو سب مانتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں، ان کے پاس بھی فری ول ہے، لیکن وہ کیسے دکھتے ہیں، کس چیز سے بنے ہیں، یا ان کا رہن سہن کیسا ہے، یا ان کے اوریجنز کیا ہیں، اس معاملے میں ہر ریلیجن اور ہر کلچر کی اپنی ہی ایک اسٹوری ہے۔ میں سب تو یہاں ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن ایک بہت ہی سمپل مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جنات اور ڈیمنز کہنے کو تو یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ایٹ لیسٹ دنیا ایسا ہی سمجھتی ہے، لیکن یہاں پہ ڈفرنس آ جاتا ہے کلچرز کا۔ عرب کلچر میں ایک سپر نیچرل اینٹیٹی جو کہ ہمارے ساتھ ہی ایگزسٹ کرتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹراڈنری پاورز دی ہیں، ان کو جنات کہتے ہیں۔ اور اگر یہی سیم چیز آپ اپلائی کر دیں ویسٹ ورلڈ پہ تو وہ اس کو ڈیمن کہتے ہیں۔ آپ نے اگر ہارر موویز دیکھی ہیں یا ڈاکیومنٹریز دیکھی ہیں تو ڈیمنز کی ایک بڑی ہی بیسک سی ڈیفینیشن ہے، اور وہ ڈیفینیشن ہے سم تھنگ دیٹ نیور واکڈ دی ارتھ ان ہیومن فارم، یعنی کوئی ایسی چیز جو کبھی بھی انسانی فارم میں اس دنیا پہ نہیں رہی۔ وہ انسان کی شکل ضرور لے سکتی ہے، انسان کی شکل میں کسی کے بھی سامنے آ سکتی ہے، انسان کی آواز نکال سکتی ہے، انسان کو بیسکلی میمک کر سکتی ہے ہر طریقے سے، لیکن کبھی بھی وہ ہیومن فارم میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہی ڈسکرپشن جنات کی بھی ہے۔ پھر ویسٹرن گھوسٹ ہنٹرز ڈیمنز کو کلاسیفائی کرتے ہیں ایک ایسا بینگ یا ایک ایسی مخلوق جو کہ ایک انٹیلیجنٹ مخلوق ہے، جس کے پاس اپنی عقل ہے، جو اپنے ڈیسیجنز لے سکتی ہے، اپنے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ اور جنات کے بارے میں تو یہ ساری چیزیں آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں۔ ویسٹرن ورلڈ جس طرح ڈیمنز کو ڈسکرائب کرتا ہے اس میں اور جنات میں کوئی فرق نہیں، لیکن ویسٹرن ورلڈ ڈیمن کے جو اوریجنز بتاتا ہے وہ ایک ایسی مخلوق کے ہیں جو ایگزسٹ تو کرتی ہے لیکن اس کا اس دنیا سے کوئی انٹریکشن نہیں ہے۔ آپ نے بہت سارے فقیروں اور عاملوں سے سنا ہوگا کہ میرے قبضے میں اتنے جن ہیں، میرے قبضے میں اتنے جنات ہیں، لیکن جنات کوئی ایسی بیوقوف مخلوق نہیں کہ جس کو کوئی بھی قابو کرتا پھرے۔ یہ بالکل ہماری ہی طرح بہت ہی انٹیلیجنٹ مخلوق ہے، اور ان سے کوئی بھی کام کروانے کے لیے ان سے کسی نہ کسی قسم کی ڈیل کرنی پڑتی ہے، کسی نہ کسی قسم کا ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے، جیسے آپ کو نارمل کسی انسان کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو واقعی یہ کام کرتے ہیں، جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ شخص جنات نکالتا ہے یا بھگاتا ہے، وہ بیسکلی جنات سے کوئی نہ کوئی ڈیل کرتے ہیں، ان کو بدلے میں کچھ نہ کچھ آفر کرتے ہیں اس جگہ یا اس انسان کو چھوڑ دینے کے لیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے لوگ نہیں ہیں اس دنیا میں جو واقعی جنات کو قابو کرنا جانتے ہیں، اور اس بات میں کوئی شک ایسے نہیں ہے کہ جنات کو قابو کرنے کا جو علم ہے وہ انسانوں کو فرشتوں سے ہی ملا ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو یہ کلیم کرتا ہے کہ اس نے جنات کو قابو کیا ہے، اور وہ ساتھ یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو اس کا دونوں میں سے ایک کلیم بالکل جھوٹا ہے، کیونکہ جنات کو جادو کے بغیر قابو نہیں کیا جا سکتا، اور جو شخص جادو کرتا ہے وہ ویسے اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ جنات سے ہمارا انٹریکشن ہونا اس سے زیادہ کامن ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں، اور جنات سے انٹریکشن کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کوئی چھوئے، آپ کو کوئی آواز آئے، یا آپ کو کوئی ہوا میں اڑا دے، یا آپ کے سامنے کوئی کسی خوفناک شکل میں آ کے کھڑا ہو جائے۔ یہ سب تو بہت ہی ایکسٹریم کیسز میں ہوتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی معاملہ خراب ہوا ہوتا ہے، لیکن نارمل کیسز میں جنات سے انٹریکشنز کے جو سائنز ہیں وہ اتنے نارمل اور معمولی ہوتے ہیں کہ ہمیں کبھی کبھار اندازہ بھی نہیں ہوتا، یا ہم ان سائنس کو بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں۔ جن میں سے ایک سائن جو بہت ہی زیادہ کامن ہے، جو پرسنلی میں نے بھی کئی بار فیل کیا ہے، وہ ہے آؤٹ آف نو ویئر خوشبو کا آنا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ کو اچانک ایک بہت ہی اچھی سی خوشبو آنے لگ جاتی ہے، اور آپ کو پتا
है कि आपके घर में किसी ने कोई परफ्यूम नहीं लगाया या कोई ऐसा शख्स भी बाहर से नहीं आया जिसने कोई परफ्यूम लगाया हुआ हो, तो इसका मतलब कि आपके साथ वहाँ कोई और भी मौजूद है। अगली बार जब भी कभी ऐसे आउट ऑफ नोवेयर खुशबू आए तो आप इस बात को नोटिस कीजिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुशबू वहीं रुक जाती है, यानी काफी देर तक आपको वो खुशबू आती रहती है। इसका मतलब जो भी चीज है जिसकी वजह से वो खुशबू आ रही है वो आपके साथ ही मौजूद है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये खुशबू सिर्फ 1 मिनट या थोड़ी देर के लिए आती है, उसके बाद गायब हो जाती है। अगर ऐसा हो तो आप समझ जाइएगा कि आप जहाँ भी बैठे हैं वहां से किसी ऐसी मखलूक का गुजर हुआ है या कोई ऐसी मखलूक गुजर रही है जिसके पास से ये खुशबू आ रही है या जिसकी वजह से ये खुशबू आ रही है। चाहे दुनिया का कोई भी कल्चर हो, चाहे दुनिया का कोई भी रिलीजन हो, एक चीज हर रिलीजन और हर कल्चर में कॉमन है और वो है इन एंटिटीज से खुशबू या बदबू का आना। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं जो आपकी दादी या नानी ने आपको सुनाई हो कि खुशबू या बदबू आने का मतलब जो है वो ये है कि आपके आसपास जिन्नात मौजूद है। ये एक वेल नोन सुपरनैचुरल फैक्ट है कि अगर आउट ऑफ नोवेयर आपको कोई खुशबू आती है तो इसका मतलब आपके करीब जो भी चीज है आपको उससे कोई खतरा नहीं है। और अगर आपको कोई बुरी स्मेल आती है तो इसका मतलब आपके आसपास जो भी चीज है उससे आपको और आपके घर वालों को बहुत ज्यादा खतरा है। एक और साइन जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और ये साइन भी मैं कई दफा फील कर चुका हूँ, अपने घर में ही फील कर चुका हूँ, वो साइन है आवाजों का आना। अब आवाजों के आने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई खौफनाक सी आवाजें आएंगी। वो आवाज किसी भी सूरत में हो सकती है। वो आपके घर वालों की सूरत में भी हो सकती है, जैसे आपको किसी ने आवाज दी हो। वो कोई अननोन आवाज भी हो सकती है जिसने आपका नाम लिया हो, और वो किसी चीज के हिलने की, घिसटने की या गिरने की आवाज भी हो सकती है। अगर आप उन लोगों में से जो रात में जागते हैं और आपको कभी ऐसा फील होता है कि आपको कुर्सी के घिसटने की आवाज आई है और थोड़ी देर बाद फिर से ऐसा फील होता है, फिर से कुर्सी के घिसटने की आवाज आती है, तो वो कुर्सी जहाँ भी जिस भी रास्ते में रखी है उसको रास्ते से हटा दें और आप गौर कीजिएगा कि आपको आवाज आना बंद हो जाएगी। आवाजों में सबसे कॉमन है सामान के हिलने की आवाज आना या अपने घर वालों की आवाज आना। अगर आपको सामान के हिलने की आवाज आउट ऑफ नोवेयर आती है तो उसको इग्नोर करना ही बेहतर है। लेकिन अगर आपको आपके घर वालों की आवाज आती है तो उसका जवाब देने के बजाय अपने घर वालों से जाके पूछ लेना ज्यादा बेहतर है कि क्या उन्होंने आपको आवाज दी है। एक और भी साइन है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है, लेकिन ये ज्यादातर उन लोगों के लिए कॉमन है जिनके घर में पेट्स हैं। अल्लाह ताला ने जानवरों को, दूसरी मखलूकात को देखने की एबिलिटी दी है जो हम इंसानों को नहीं दी। अगर आपका कोई भी पेट आउट ऑफ नोवेयर शोर करना शुरू कर दे, किसी चीज की तरफ इशारा करना शुरू कर दे या किसी एक डायरेक्शन में घूरना शुरू कर दे, तो वो बेसिकली आपको यही बताना चाह रहा होता है कि इस वक्त इस घर में या इस कमरे में कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसको यहाँ नहीं होना चाहिए। और अगर आपका पेट फॉर नो रीजन घबराने लग जाए या छुपने लग जाए या किसी डायरेक्शन में देख के उससे दूर जाने लग जाए, तो वो आपको ये बताना चाह रहा है कि इस घर में या इस कमरे में इस वक्त कोई ऐसी चीज मौजूद है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। एक और बहुत ही कॉमन साइन है जिसे लोग बहुत इजीली इग्नोर कर देते हैं, वो है आपके पेरिफेरल विजन में आपको कुछ नजर आए। जिन लोगों को नहीं पता पेरिफेरल विजन क्या होता है, तो इसकी आसान सी एक्सप्लेनेशन है, आप जब बिल्कुल सीधा अपने सामने देखते हैं तो भी आपको अपने दोनों साइड्स पे कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होता है। यही आपका पेरिफेरल विजन है कि आपको अपनी आंखें या सर मूव किए बगैर अपने साइड्स पे जो भी चीज दिखाई दे रही है वो आपका पेरिफेरल विजन है। और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि आपको कभी ऐसा फील हो इन द कॉर्नर ऑफ योर आई, आपने किसी चीज को मूव होते हुए देखा या किसी इंसान को खड़े हुए देखा। अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो और आप उस जगह पे अकेले हो तो आपको उस डायरेक्शन में घूरना नहीं चाहिए। ये तो वो साइंस है जो बहुत ही कॉमन है। कुछ साइंस ऐसे हैं जो है तो कॉमन लेकिन लोगों को रियलाइज नहीं होता कि ये साइंस है किस चीज के। उनमें से पहला जो साइन है वो है सडन चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के चेंज होने का ये मतलब नहीं कि सर्दी में आपको गर्मी लगने लगेगी। टेम्परेचर के चेंज होने का ये मतलब है कि शदीद सर्दी में भी कभी कभार आपको ऐसा फील होता है कि आपको कुछ ज्यादा ठंड नहीं लग रही, जबकि आपके साथ के सारे लोग ये बात बोल रहे होते हैं कि आज बहुत ज्यादा ठंड है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो उसकी वजह यह है कि आपके बहुत ही करीब कोई ऐसी मखलूक मौजूद थी जिसकी वजह से टेम्परेचर में एक शिफ्ट आया था। और ऐसा अक्सर गर्मियों में भी होता है कि सबको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है लेकिन आपको ऐसा लग रहा होता है नहीं आज तो कोई इतनी खास गर्मी नहीं है। उसकी भी यही वजह होती है। हमारे माशरे के कुछ एक्सेप्शनल लोगों को छोड़ के ये साइंस बाकी सब इंसानों पे अप्लाई होते हैं। एक और ऐसा साइन जो कि बहुत ही कॉमन है लेकिन लोग उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते बल्कि किसी और ही डायरेक्शन में ले जाते हैं, और वो साइन है कॉन्स्टेंटली नाइटमेयर्स का आना या कॉन्स्टेंटली डरावने ख्वाब देखना। कॉन्स्टेंटली का ये मतलब नहीं कि आपको रोजाना ही डरावने ख्वाब आएंगे या जब आप आंखें बंद करेंगे आपके सामने कोई जिन भूत आके खड़ा हो जाएगा। कॉन्स्टेंटली का मतलब है अगर आपको हफ्ते में 2 से 3 दफा भी कोई डरावना ख्वाब आ रहा है, भले से वो ख्वाब रिपीट ना हो रहा हो, लेकिन आपको हफ्ते में 2 से 3 दफा डरावने ख्वाब आते हैं तो इसका मतलब कि कोई चीज आपसे कम्युनिकेट करना चाह रही है या फिर अल्लाह ताला आपको इशारा दे रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसी चीज मौजूद है जिससे आपको अपनी हिफाजत करनी चाहिए। अनएक्सप्लेन्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स, बट ये इतनी ज्यादा कॉमन नहीं क्योंकि यूजुअली हेल्थ प्रॉब्लम्स के पीछे
कोई ना कोई मेडिकल रीजन लाजमी होता है। इवन इफ यू आर एक्चुअली पोजेस्ड बाय अ जिन, तब भी आपकी मेडिकल डेफिशिएंसी का कोई ना कोई मेडिकल रीजन लाजमी निकल आता है। लेकिन बहुत रेयरली ऐसे केसेस भी आ जाते हैं जिनकी हेल्थ डेफिशिएंसी या बीमारी का कोई भी रीजन किसी भी तरह के टेस्ट में आइडेंटिफाई हो ही नहीं पाता। लेकिन ये केसेस बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। तो अगर कभी तबीयत खराब हो या आपको लगे कि आउट ऑफ नोवेयर आपकी तबीयत खराब हो गई है, तो बेहतर यही है कि डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। इसके टोटली अपोजिट एक और ऐसा साइन है जो कि इतना ज्यादा कॉमन तो नहीं, लेकिन लोग उसे टोटली इग्नोर कर देते हैं, और वो साइन है अनईजी फील करना, यानी बिला वजह घबराहट होना या सुकून का ना आना। आप में से हर कोई अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी ऐसी जगह पे लाजमी गया होगा, चाहे वो आपके घर का कोई हिस्सा हो, चाहे आपके दोस्तों रिश्तेदारों में से किसी के घर का कोई हिस्सा हो, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, एनीवेयर, कोई ना कोई ऐसी जगह आपकी लाइफ में रही होगी जहां आपको बिला वजह अनईजी फील होता है। आप चाहे कुछ कर लें, आपको उस जगह पे सुकून आता ही नहीं है। और ऐसा भी बहुत होता है कि कोई ऐसा स्पॉट जहां आप ऑलमोस्ट रोजाना ही बैठते हैं, वहां जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तब तो आपको कुछ इतना खास फील नहीं होता, क्योंकि बातों में आपको पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर आप कभी उसी जगह पे अकेले बैठते हैं तो आपको एक अनईजी सी फीलिंग होती है, और ये अनईजी फीलिंग इसलिए होती है कि उस वक्त भी आप वहाँ अकेले मौजूद नहीं होते। और एक साइन जो कि मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा ही कॉमन होगा, जो कि हर एक ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो फेस किया होगा, वो है चीजों का मिसप्लेस होना। आप कभी कोई चीज कहीं रख दें और वो आपको वहां से ना मिले, आप पूरा घर छान लेते हैं लेकिन आपको नहीं मिलती, और इन दी एंड वो चीज किसी ऐसी जगह से मिलती है जहां आप 100 दफा देख चुके होते हैं। और कुछ लोगों को तो इस चीज की इतनी आदत हो चुकी है कि अगर कभी उनकी कोई चीज नहीं मिल रही होती तो वो घर में खड़े होकर जोर से आवाज लगाते हैं कि भाई जिसने भी ली है वो इसको अपनी जगह पे वापस रख दे। ये सब वो साइंस हैं जो आपको बताते हैं कि आपके साथ इस वक्त कोई और भी मौजूद है, या आप इस घर में या इस कमरे में अकेले नहीं। और साथ साथ ये भी रिमाइंड कराते रहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपके अलावा एक और मखलूक भी ऐसी बनाई है जो बिल्कुल आप ही की तरह है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। जिन्नात फिजिकल एबिलिटीज या फिजिकल क्रिएशन में हमारी तरह नहीं है, लेकिन उसके अलावा इंसान और जिन्नात में कोई खास फर्क नहीं है, और बिल्कुल हमारी ही तरह जैसे हमें अगर किसी चीज का पता चल जाए तो हम उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही जिन्नात को भी अगर किसी स्टोरी या किसी चीज का पता चल जाए तो वो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 देखा है तो आपको ये बात तो समझ आ ही गई होगी कि जिन्नात का कुरान और हदीस में जितना जिक्र हुआ है उससे ये तो 110% कंफर्म्ड है कि ये एग्जिस्ट करते हैं, और बिल्कुल हमारी ही तरह इनकी सोसाइटी और सब कुछ है। लेकिन जिन्नात के अलावा 2 और मखलूकात ऐसी हैं जिन पे लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ये भी एग्जिस्ट करती हैं, और इनसे भी इंसानों का इंटरेक्शन होता रहता है। उनमें से एक मखलूक ऐसी है जिसके बारे में सारे ही कल्चर्स बिल्कुल सेम बिलीफ रखते हैं, और वो मखलूक है रूह, यानी जो लोग मर चुके हैं और उनकी रूह इस दुनिया में पीछे रह गई है। और दूसरी वो मखलूक है जिसके अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग नाम है। डीमन, असुरा, मारा, वेंडिगो, ये सारे अलग अलग नाम हैं एक ही मखलूक के। क्या ये भी वाकई एग्जिस्ट करते हैं? और अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो इनके और जिन्नात के बीच क्या रिलेशन है, या इनमें और जिन्नात में कोई डिफरेंस है, या ये एक ही चीज है? अगर आप इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो साइंस मैंने इस वीडियो में बताए हैं, अगर उनमें से कोई भी आपके साथ फ्यूचर में कभी हो तो एक बार ये बात जरूर कंसीडर कीजिएगा कि आपके साथ कोई और भी मौजूद है।